Good morning, my dear students. Today I am going to explain Unit 3rd, Chapter 18, and the chapter name is Why Democracy Dimensions of Equality. The story of democracy. Human beings have always been worried about the governments in whatever form since it affects them directly. Primitive tribes used to choose the ablest and strongest man to lead them. यानी कि डेमोक्रेसी कहीं हम अपने गवर्नमेंट को लेकर के हमेशा से चिंतित रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास रहा है कि हम सबसे स्ट्रांग आदमी को चुने जो हमें लीड कर सके, हमारी सारी चीजों को पूरा कर सके. The stereotype of the tribal leader is available in all cultures and geographies of the world. Similarly, in later times also people were concerned about the quality of government since it affected their own equality of life. यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि गवर्नमेंट्स की क्वालिटी ही उनके पर्सनल लाइफ को क्या करता है, इफेक्ट करता है. A greedy ruler would extract high taxes without caring for people's welfare. अगर कोई ग्रीडी लीडर रहेगा तो वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, ना कि पीपुल के वेलफेयर के बारे में. फॉर दिस रीजन बेनेवोलेंट किंग्स वर एडोर्ड वाइल टेरेंट्स एंड डिपोजिट वर अवॉर्ड. यानी कि जो राजा पहले होते थे उसमें से कुछ राजा बस अपने बारे में सोचते थे जिनकी सत्ता जल्दी खत्म हो जाती थी. Those were the days of monarchy when kings ruled over countries and kingship was hereditary. वो क्या होता, मोनार्की होती थी जब राजा राज्य करता था और वो अपने जाति पात अपने ये मोनार्की था जब राजा खुद राज्य करता था और अपने रिश्तेदारों को अपना उत्तराधिकारी बनाता था. Since no one could challenge their authority, kings ruled according to their wish. Some were good kings and they always thought first about the welfare of their subject. और कुछ किंग्स ऐसे होते थे जो बस अपने बारे में सोचते थे, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता था, और कुछ सबसे पहले अपने प्रजा के बारे में सोचते थे. Such wise and enlightened rulers usured in times of peace and prosperity by following policies that benefited their citizens. और ऐसे रूलर जो अपने प्रजा के बारे में सोचते थे वो ऐसे पॉलिसीज बनाते थे जो उनके सिटीजन्स के लिए अच्छा हो. Some kings, however, were only interested in their own personal glory. They fought wars to expand their empires and taxed the people heavily to maintain large armies. और कुछ ऐसे राजा होते थे जो अब ज्यादा आर्मी रखते थे और उनको आर्मी रखने के लिए लोगों से टैक्स लेना पड़ता था. This type of kingship usually brought much misery and hardship to the masses. The kings lived lavishly while the subject lived in abject poverty. और ऐसे जो राजा होते थे वो राजमहल में ठाट बाट से रहते थे और जो उनकी प्रजा होती थी वो गरीबी झेलती थी. Some restrictions began to be imposed on the absolute powers of king in the 17th and 18th century when revolution took place in Europe. जब यूरोप में क्रांतिकारी विद्रोह हुआ 17वीं और 18वीं शताब्दी में, तब इस तरीके के राजाओं के ऊपर बंदिश लगना शुरू हुआ. In certain countries such as France, king was executed and the people took charge of the government. और जब फ्रांस में सबसे पहले ऐसा हुआ था कि वहां के राजा को हटा करके लोग वहां पे सरकार को अपने हाथों में ले लिए थे. Thus this democratic government had no choice but to rule according to established laws and not as per their whims. और इस हाल में राजा को प्रजा के तरीके से काम करना पड़ा और अपनी विश को हटाना पड़ा. Since such government were answerable, accountable to the people they governed, they followed policies that were beneficial for the majority of the people and not just a small set of privileged people as in a monarchy. यानी कि अब वहां का राजा भी राज करता था तो वहां पहले सोचता था. Thus the authority of the people gradually becomes supreme across the world. इस तरह धीरे धीरे जहां पे पहले राजा का वर्चस्व होता था, धीरे धीरे लोगों का वहां पे होना शुरू किया. In many countries, monarchies were either abolished or the king abolished voluntarily. Recently, in Bhutan, King Jinping Wangchuk stepped down in favor of democratic setup. और रिसेंटली भूटान में कि जो
राजा थे वो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इस फेवर में अपने राजगद्दी से उतर गए थे और इट वॉज डन द हार्ड वे एज वॉज किंग ज्ञानेंद्र शाह ऑफ नेपाल वॉज फोर्स्ड एबिडिकेट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसी तरह नेपाल में भी हुआ था। ओके, Meaning of democracy. What is the meaning of democracy? Democracy is the most popular type of government in the modern world. यानी कि आज के समय में डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड आर डेमोक्रेटिक। और जो इस समय ज्यादातर देश जो आजाद हुए वो वहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। द एक्सपेंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन स्मूथ एंड इट हैज बिकम ग्लोबल। In the contemporary world, democracy is the most ideal form of government। और आजकल के जमाने में डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब्राहम लिंकन डिफाइंड अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को कैसे, वो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से ही चुना जाता है। This type of government is considered to be the best form of government despite its many drawbacks। यानी कि इस तरह का गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होता है। In this system, the people themselves elect the government। इस तरह डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपने द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। The people take part in all the activities of actually run the government and exercise full control over it। और कहीं ना कहीं हम अपने पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल रखते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो काम करती है उसके एक्टिविटी को सराहते हैं और उसकी बुराई भी करते हैं। बिकॉज इट government does not do its work properly, it can be replaced by another set of representative who do so। अगर एक गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो उसके जगह पे हम दूसरे गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। The representative people make laws and ensure that those laws are fully implemented and that not injustice is done to anybody। गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है वो ये देख करके बनाई जाती है कि ये किसी को हानि ना पहुंचाए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। और ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। Since all men are born equal, they must have equal rights, equal opportunity and equal status before the law। और जैसा कि सभी इंसान एक साथ इक्वल पैदा हुए हैं, चाहे वो औरत हो आदमी हो, तो उन्हें समान अवसर, समान राइट्स और समान कानून मिलने चाहिए। द लेटर इज नोन एज रूल ऑफ लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ law। In a democratic government, there is no distinction between citizens based on race, religion, caste, color and living। यानी कि रंग रूप धर्म के आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। Equal opportunities are provided to all to be educated, to grow as good citizen and to earn their living। सभी को समान शिक्षा का अधिकार, अच्छे नागरिक बनने का अधिकार है और पैसे कमाने का अधिकार भी है। All citizens have equal rights to cast their votes for electing representative in the government, to seek election and hold offers for which they are eligible, whether in terms of age, qualification or experience। और यहाँ के लोगों को ये भी अधिकार है कि वो अपने गवर्नमेंट को खुद चुन सके। डेमोक्रेसी ensure that all eligible citizens have equal right to participate in governments at whatever level, local, regional और national। और यानी कि वो डेमोक्रेसी पे एक पर्टिकुलर एक इंसान भी अपना भागीदारी निभाता है। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, कॉम्बिंग डेमोस कॉमन पीपुल एंड कैरेटस पावर। यानी इसका मतलब क्या होता है, कॉमन पीपुल का जो पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। ओके, डेवलपमेंट इन इंडिया। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी इन अ सिविलाइजेशन was found in republics in ancient India, which were established some time before the 6th century BC, prior to the birth of Gautam Buddha। One of the earliest instances of democracy of civilization, सबसे पहले जो सिविलाइजेशन इंडिया में हुआ था डेमोक्रेसी सिविलाइजेशन, वो गौतम बुद्ध के समय में ही पा लिया गया था। These republics were known as Mahan Janpad, and among these states, वैशाली in Bihar was the world's first republic। वर्ल्ड्स बेस्ट फर्स्ट रिपब्लिक कौन सा था, वैशाली जो बिहार में था।
The democratic Sangha, Gan and Panchayat system were used in some of these republics. The Panchayat system is popular even today in Indian villages. In fact, it is the backbone of the democratic setup. यानी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो पंचायत सिस्टम है वो शुरू से ही रहा है. Athenian democracy. The city-state of Athens, Greece was among the first democracies in ancient times. जो एथेंस और ग्रीस की जो डेमोक्रेसी वो एंशियंट टाइम की सब डेमोक्रेसी है. द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ग्रीक टर्म मीनिंग रूल बाय द पीपल. ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? रूल बाय द people. This type of governance was invented by Athenians around 508 BC. Athenian democracy was based on selection of official by lot. In other decisions were based on majority vote. यानी जो जैसे हम अभी चुनाव करते वैसे उस समय भी वोट के आधार पर लोग चुनते थे. All male citizens of Athens, everyone was not eligible. Only men person were eligible. Assemble at a particular place and votes were cast on decisions that needed to be taken. Elected official did not make decision delegating the power of decision making. Giving decision making power to elect official was considered by the ancient Athens to take away from द पावर ऑफ द पीपल. यानी उस समय भी लोगों के द्वारा चुने जाते थे और उन्हीं के आधार पे वो काम करते थे. दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक द स्टेट ऑन ओलिगरेसी. डेमोक्रेसी इन एंशियंट एथेंस देयरफॉर मींट इक्वालिटी इन इक्वालिटी. डेमोक्रेसी एंशियंट एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी उसमें इनइक्वालिटी थी. क्यों? क्योंकि वहां पे औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं था. बट टर्म सिटीजन्स वॉज नॉट नैरो दैट ओनली अबाउट हाफ द पॉपुलेशन कुड पार्टिसिपेट इन सच वोटिंग. और जो वहां पे वोटिंग होती थी उसमें बस आदमी लोग पार्टिसिपेट करते थे, औरतें नहीं पार्टिसिपेट कर सकती थी. द एथियन ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट अलाउ एनी डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग टू इलेक्टेड पर्सन. ओके. डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज. अब मॉडर्न सोसाइटी में डेमोक्रेसी कैसी है? द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज लिंक्ड टू यूरोप. जो मॉडर्न सोसाइटी है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज से लिंक्ड है. The glorious revolution of the 17th century in England and the France revolution of 18th century in France greatly contribute to its development. जो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और फ्रेंच में जो 18वीं शताब्दी में रेवोल्यूशन हुआ था वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देता है. द ग्लोरियस रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. Earlier it was believed that the king's wishes were the rule of law. पहले ये विश्वास किया जाता कि राजा का मत ही किंग्स लॉ जो होता था वो वहां का लॉ होता था. The people protested against the principle and by dethroning their king in 1688 and by passing the Bill of Rights they stabilized the idea that the country should be ruled by law passed by the people or the parliament and not by the whims of an individual. जब ये पहले उस समय डिसाइड हुआ था जब किंग जेम्स सेकंड को इंग्लैंड के राजा थे उनको 1688 में उनके राज से हटा दिया गया और ये कहा गया कि जो यहाँ पे सत्ता चलेगी वो एक पर्टिकुलर इंसान के पर्टिकुलर व्यक्ति के बेस पे नहीं बल्कि पूरी प्रजा को लेकर के चलेगी. अ सेंचुरी लेटर द फ्रेंच पीपल थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशन वंस अगेन बाय एक्सिक्यूटिंग देयर किंग लुइस 16 को भी हटा करके फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस चीज को बढ़ावा दिया गया. Thus, the rule of law was the first important step toward the establishment of democratic government. इसलिए rule of law सबसे पहला कदम था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाने के लिए. This great revolution also gave birth to another great idea which further strengthened the roots of democracy. इसी रेवोल्यूशन ने आगे एक बहुत अच्छे विचार को सामने लाया जिससे कि डेमोक्रेसी की नींव मजबूत हुई. It was the idea of accountability or responsibility which meant that the government must be responsible to the people who had the right to vote and who were known as the electorate. और तभी से ये बात भी सामने आई कि जो भी इंसान वहां पे चुन के जाएगा वो अपने इलेक्टोरेट यानी जो वोटर होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was a temporary victory of democracy in Europe as it was preserved in France and temporarily extended to Germany. Already in 1906, full modern democratic rights and universal suffering voting rights for all citizens were implemented in
फिनलैंड। सबसे पहले 1906 में फिनलैंड में वोटिंग राइट्स दिए गए थे। Likewise, the February Revolution in Russia in 1970 inaugurated a few months of liberal democracy under Alexander Kerensky until Lenin took over in October। इसी तरह 1917 में जो रसिया में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था उसने भी इसको बढ़ावा दिया। The economic impact of the Great Depression hurt democratic forces in many countries. The 1930s became a decade of dictators in Europe and Latin America। इसी तरह 1930वीं शताब्दी जो रही वो सारे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक को बढ़ावा देने का काम किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज अल्टीमेटली a victory for democracy in Western Europe, where represented governments were established that reflected the general will of the citizens। इसी तरह वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब आई इसने भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। However, the countries of Central and Eastern Europe become undemocratic Soviet satellite state. In Southern Europe, a number of right-wing authoritarian dictatorship, notably in Spain and Portugal, continues to exist। और कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इसको मतलब बढ़ावा देने से इनकार कर दिया। जापान मूव टुवर्ड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द ताइसो पीरियड इन 1920s, बट इट वाज इफेक्टिवली अंडर मिलिट्री रूल इन द इयर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जापान ने भी 1920 में डेमोक्रेसी को अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आर्मी का वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो आर्मी का भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान था। The country adopted a new constitution during the post-war Allied occupation, with electing being held in 1946। 1946 में इसने पूरे डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया बिकेम अ सोवर्जिन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1915 व्हेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। और इंडिया ने डेमोक्रेसी को कब अपनाया? 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ। द पेन्स ऑफ decolonization led to much political upheaval in Africa, with some countries there offer experience instability by way of rapid swing between democratic and other forms of government। और कहीं ना कहीं अफ्रीका में डेमोक्रेटिक और अदर गवर्नमेंट के बीच में ये एक स्विंग रहा, यानी चेंजेस होते रहे। In Southeast Asia, political division in both Korea and Vietnam escalated into wars, while various powers with polarized political system from the West, China and the Soviet Union brought pressure to bear on the region to conform to their particular type of ideology। और कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे और जो चाइना थे, वहां पे उसके जो पुरानी गवर्नमेंट चली आई थी उसको कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी को अपनाने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। दस डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्लैश इन दिस कंट्रीज वेयर देयर इज इनफ्लक्स। और कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे वो एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे के सामने रहे। न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप इन 1970 एंड 1980। 1970 से लेकर 1980 तक यूरोपियन कंट्रीज में किसका डेमोक्रेटिक का representative government was institution in the southern, central and eastern nations of Europe respectively। representative मतलब वहां की गवर्नमेंट को मजबूरन डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ा। मच ऑफ लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान, साउथ कोरिया एंड सम अरब एंड अफ्रीकन स्टेट, नोटबडी लेबनान एंड द Palestinian Authority moved towards greater liberal democracy in 1990 to 2000। 1990 से लेकर 2000 तक कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज ने भी डेमोक्रेसी को अपनाया। डेमोक्रेसी इज एन ओवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, इट एक्सेप्ट चेंजेस एंड असमिलेट्स न्यू मीनिंग एज आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स ग्रो विद द टाइम। और डेमोक्रेसी आज भी कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे मोनार्की है जो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू कर रहे हैं, यानी डेमोक्रेसी हर उस रूल को अपनाती है जो उसमें चेंजेस करते हैं। ओके, now explain this chapter. Next will be characteristics of democracy. I will explain this in your next video. Okay, have a good day. Bye.